Hello, 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 everyone. Hi. Let us just wait for a few minutes. All will join. We will start in 2 to 3 minutes. Everyone just wait. All will join.
Just meanwhile, everyone else will keep joining. Sir, if message is put in the group, everyone will join soon. Okay, so they would be joining. I've already posted that. So before we move ahead, today we were about to discuss capacitor questions based on the TPPs that you would have done. So have you all attempted that TPPs? Then we will discuss that and finish that. TPPs हो गया? Okay, तो अगर TPPs हो गया है, so any doubt किसी क्वेश्चन में, so you all can ask me. नहीं तो फिर मैग्नेटिज्म से कंटिन्यू करते हैं. Question 25. Okay, one by one we will do. All right, so first we will begin with question number 25. So this is the question. Has anyone done this? Okay, question 26 and 28 as well we will do.
Sir, this is of capacitors. I was talking about current electricity 25. Okay, current electricity. Let me get that. So what about you, Koshi? You pointed 26, 28. That also from current electricity? Okay, all right. So I'll bring that question from current electricity. Okay, this question number 25, right? This question. So here figure shows a network of 7 resistors numbered 1 to 7, each equal to 1 ohm. सबके value 1 ohm है. Connected to a 4-volt battery. It's connected like this. Of negligible internal resistance, you have to find out the current I in the circuit. Okay, so how to solve this kind of question? सबसे पहले हम उस पॉइंट को एनालाइज करते हैं जहां से कि करंट आ रहा है. तो इस पॉइंट पे करंट आ रहा है. हियर द करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. लेट अस से सम करंट गोज हियर, सो I2 इधर चला गया और I1 इधर चला गया. अच्छा, सारे रेजिस्टर्स तो 1 ओम है. तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर से टोटल करंट कितना निकलना चाहिए? I, right? Because I current is coming out from the battery. I current should go into the battery. अब अगर ये I करंट आना चाहिए, मतलब इधर से और इधर से मिलाकर कितना करंट आएगा? I1 और I2 होना चाहिए, राइट? क्योंकि I करंट I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, बिकॉज इट वाज गोइंग थ्रू 1 ओम एंड 1 ओम रेजिस्टर. अब इधर भी क्या हो रहा है? 1 ओम और 1 ओम रेजिस्टर से करंट क्या होगा? कंबाइन होगा, तो I बनेगा. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि I1 करंट इधर से आ रहा था और I1 करंट यहाँ से जा रहा है. दैट मीन्स देयर इज नो यूज ऑफ दिस junction. So remember, for such kinds of circuit, we can just remove this junction. This circuit will be equivalent to the one without this contact at point B. तो कैसा हो जाएगा हमारा equivalent circuit? ये हो जाएगा हमारा equivalent circuit. And now you can easily find out the current. Is this understood? मैंने कैसे analyze किया? So there are just few tricks in electricity जिससे कि कोई भी resistor की questions हो जाएंगे. So one question is based on symmetry. So at the end we will try to do the question based on symmetry, जिसको हम अप्लाई करके किसी भी नेटवर्क का resistance total निकाल सकते हैं. Okay, so now you can solve. You said that's good. Okay, next question number 26 and 28. Okay, this question 26, what it says, in the circuit shown in the figure, the current through 10 ohm resistor, मतलब यहाँ से करंट कितना जाएगा? तो मैंने क्या किया, करंट का डायरेक्शन फिक्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मैं श्योर हूँ कि ये करंट इधर पॉजिटिव से जाएगा, और ये जो दिखा रखा है यहाँ पर, इसका मतलब है दे ऑल आर अर्थ, मतलब 0 पोटेंशियल है. तो हमने क्या किया, यहाँ पर 0 पोटेंशियल ले लिया. ये 12 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये हमारा 12 वोल्ट हो जाएगा. वैसे ये पोटेंशियल कितना होगा?
Can anyone tell that potential? What will it be? क्या उसको भी मैं जीरो ले सकता हूँ पोटेंशियल? Yes, sir. यस, बिकॉज इट इज क्लियरली शोन कि वो जो पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट दे आर ऑल सिमिलर, दे आर आइडेंटिकल, दे आर ऑल अर्थ। ठीक है, इसको मैंने जीरो ले लिया, इसको भी जीरो ले लिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द करंट थ्रू दिस 10 ओम। मतलब हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, राइट? वी रिक्वायर पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ से इस बैटरी से करंट आई निकला और इसको मैं कुछ दूसरा करंट ले लूंगा। अब यहाँ से करंट आई गया, तो ये 12 वोल्ट है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया? 12 माइनस 3i, राइट? अब 12 माइनस 3i, यहाँ से क्या होगा? करंट सेपरेट होगा, कुछ करंट इधर आएंगे और कुछ करंट इधर आएंगे। सो लेट अस सपोज ये करंट i1 है और ये करंट i2 है। फिर यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 12 माइनस 3i माइनस 2i2। फिर यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इसी पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में 12 माइनस 3i माइनस 3i2 माइनस 10i2 और ये हो जाएगा 0, राइट? ओके, दिस इज क्लियर। अच्छा, ये एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये सारे पॉइंट सिमिलर पोटेंशियल पे हैं, मतलब क्या इस सीरीज को, इस सर्किट को मैं ऐसे करके कनेक्ट कर सकता हूँ? विल इट रिमेन द सेम सर्किट? हाँ सर। यस, आई कैन डू दैट एज वेल। और अगर वो हमने कर दिया तो इजीली हम करंट निकाल सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। So you can do from here, or should I complete this? हो जाएगा इसके बाद। Then we calculate the current following through 10 ohm resistor by KVL. Yes, we have applied KVL only, ताकि KVL हमने लगाया और पोटेंशियल ड्रॉप के रेस्पेक्ट में सारे पॉइंट के पोटेंशियल्स निकाले हमने। या फिर एक ऐसे भी कर सकते हो, लेट मी जस्ट सॉल्व भी कर देता हूँ। मान लिया हमने, वेरी सिंपल वे में हम करते हैं, मान लिया इधर से करंट आई आ रहा है, इधर से करंट I1 गया और इधर से I2 गया। हमें क्या करना है? I1 को निकालना है, फाइंड करना है। सो वी विल अप्लाई किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ लगा देते हैं। तो वो क्या होगा? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, राइट? अब I1 और I2 ये तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर I1 को देखें तो I1 कितना होगा? यू कैन इजीली फाइंड आउट I1। ये I क्या होगा यहाँ पर? दिस इज 0 वोल्ट, ये हो गया 12, और इस पॉइंट का हमने चलो पोटेंशियल मान लिया V। तो क्या मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू 12 माइनस V बाई 3। In the same manner, I can write I2 as V minus 0 by 3, and I can write I1 as high potential minus low potential। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा?
अगर उस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने V मान लिया, D पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा 12 वोल्ट है क्लियरली, यू कैन सी हियर मैं अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं लूंगा। द बेस्ट वे कुड बी कि मैं इस रेजिस्टर को कंबाइन कर दूं और इस एंड के पोटेंशियल को ऑब्जर्व करूं। सो I1 आई कैन राइट नाउ एज V माइनस 0/12, है ना। नाउ वंस आई हैव गॉट I2 I1, अब मैं इसको इस इक्वेशन में रख के आई विल जस्ट सॉल्व। सो 12 माइनस V/3 इज इक्वल टू I1 क्या है V/12 प्लस I2 है V/3। अब इससे सॉल्व करके हम V निकालेंगे, राइट, बिकॉज दिस इज जस्ट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। V निकल गया तो हमने क्या करना है, I1 फाइंड करना है, तो यहाँ पर V रख देंगे। नाउ आई होप यू कैन श्योरली डू दिस, है ना। ओके ओके, नेक्स्ट डाउट। 28। Okay, this is the question number 28 from meter bridge. Okay, a meter bridge wire is connected across a DC source of voltage V. When the steady state is reached, the temperature of wire is T, okay, and the rate of loss of heat from the wire is P is equal to K delta T. K is constant and T naught is the temperature of the room. If R is the resistance of the bridge wire at temperature T, alpha is its coefficient of linear expansion and Y is its Young's modulus, the stress developed in the wire. तो क्या है, एक मीटर ब्रिज है and it stated this meter bridge, the wire is connected across a DC source, है ना, ये इंफॉर्मेशन इसको DC सोर्स जिसका कि वोल्टेज V है। At steady state what information we have here, जब स्टेडी स्टेट रीच होता है देन द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज T, इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है T, एंड रेट ऑफ हीट लॉस मतलब कि पावर दैट इज K टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर T माइनस T नॉट। तो T नॉट क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर है, तो T नॉट से T टेम्परेचर आने में जो हीट लॉस हो रहा है पर यूनिट टाइम दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। R is the resistance, alpha is its coefficient of linear expansion and Y is its Young's modulus. Let us try to relate them all. So this is Young's modulus, this is coefficient of linear expansion and this is resistance. Okay, so how will we relate them? In steady state we know if we talk about rate of heat loss that is power, right? अब यहाँ पर क्या क्या दिए हुए हैं हमारे पास, रेजिस्टेंस है वायर का और वोल्टेज है सोर्स का, तो हम इस पावर को रिप्लेस करते हैं बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द वायर। तो पावर को हम V²/R कर सकते हैं दैट इज K टाइम्स T माइनस T नॉट, ठीक है, बिकॉज वी नीड इसको P को V²/R द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू। अच्छा, और दिस K डेल्टा T, इस फैक्टर को अगर हम देखें, this K delta T we can also write it as change in length, right? We can write this as change in length. अगर ये वायर है इसको हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं T नॉट से T, तो डेफिनेटली उस लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा एंड वी नो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट कि जो लेंथ इंक्रीज होगा दैट
L dash is L naught 1 plus अल्फा डेल्टा टी, है ना, ये हमारी इक्वेशन थी। तो यहाँ से डेल्टा एल क्या होगा, चेंज इन लेंथ, एल नॉट एल डैश माइनस एल नॉट, तो एल नॉट को उधर ले जाते हैं, ये बनेगा एल डैश इज एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो ये एल नॉट इधर आया, बना हमारा डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ अल्फा एल नॉट, लेट अस कंसीडर इनिशियल लेंथ हमारा एल नॉट ही है, is the initial length given, okay it's not mentioned here, कहीं पर फैक्टर आउट हो जाएगा। सो अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, है ना, इसको मैं डेल्टा टी के टर्म्स में लिख देता हूँ, वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो यहां से हमें फाइनली क्या मिलेगा, इफ वी ऑब्जर्व दिस पार्ट, तो इस पार्ट से ये इक्वल टू नहीं होगा, इस पार्ट से अगर हम देखेंगे तो डेल्टा एल हुआ हमारा अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा टी विल बी डेल्टा एल बाय अल्फा एल नॉट, राइट। अब यहां से हमने डेल्टा टी निकाल लिया, इस डेल्टा टी को यहां पर रख देंगे एंड वी विल अगेन गेट दिस इक्वेशन, सो दैट विल बी वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के डेल्टा एल बाय अल्फा एल नॉट, right, we have got this. Now we know this is the strain, है ना, change in length by original length, ये क्या हो गया strain, so v square by r is equal to k by alpha times, ये लिख दिया मैंने strain। और हमारा जो यंग्स मॉडुलस है, that यंग्स मॉडुलस is stress by strain, right, this is stress by strain होता है, और हमें निकालना है स्ट्रेस डेवलप, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, सो आंसर विल बी यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और इस इक्वेशन से हम स्ट्रेन निकाल देंगे, क्या मिल जाएगा स्ट्रेन, वी स्क्वायर बाय आर, ये पूरे चीज लेफ्ट में चले जाएंगे अल्फा बाय के, तो आंसर हो जाएगा y इंटू वी स्क्वायर बाय आर टाइम्स अल्फा बाय के। ये समझ में आया, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बस क्या किया हमने, इक्वेशन को मैनिपुलेट किया अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, बस हमने यहाँ पर लगाया यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस से, थोड़े कॉम्प्लिकेट तो होंगे, आई थिंक दिस अपीयर्स टू बी मोर सिंपल। यहाँ पर बस हमने दो डेफिनेशन लगाया है, एक तो ये जो ऑलरेडी गिवन था वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि पावर को डेफिनेटली वी नीड टू चेंज, और दूसरा डेफिनेशन हमने लगाया चेंज इन लेंथ, दैट विल बी द फर्स्ट थिंग वी कैन ऑब्जर्व इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर। ओके, अनदर क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो आई शुड अज्यूम टीपीपी आर ओवर फॉर इलेक्ट्रिक करंट, बस इसी के टीपीपी बचे थे क्या, ओके, एंड कैपेसिटर का भी टीपीपी है, ये सारे कंबाइंड नहीं है, कैपेसिटर के अलग टीपीपीज हैं, हैव यू ऑल डन देम, हाँ सर, उसका डिस्कशन हो गया। हाँ सर, उसका डिस्कशन भी हो गया। अच्छा कैपेसिटर बाकी सारा हो गया ना, ये मॉड्यूल 15 16 17, यस सर। okay, so then we should continue with magnetism that we started. Okay, so we discussed yesterday in a quite fast manner, क्योंकि लास्ट में हमने थोड़ी फास्ट कर दिए थे, क्योंकि रिकैप्चुलेट करते हैं
और कोई भी डाउट हो, यू ऑल कैन आस्क मी एंड वी विल डू द क्वेश्चंस टुडे मेजरली बेस्ड ऑन जो कुछ भी हमने पढ़ा. Okay, so first we talked about if there is any charge moving in a magnetic field, तो उस चार्ज पे फोर्स लगेगा and that force is F is equal to BQV sin theta. तो ये चार्ज पे पढ़ा था. We also saw that if there is a current carrying wire placed in a magnetic field, तो उस पे भी फोर्स एक्ट करेगा and that is equal to IBL sin theta. So basically ये क्या था, QV cross B. ये क्या है, IL cross B. So there was a way to get the direction of the force vector and that direction was right hand palm rule. We are extensively going to use this rule throughout the chapter. अच्छा, और नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने कि अगर फोर्स एक्ट करता है on a charge moving in a magnetic field, so that force also depends upon the angle between the velocity vector and magnetic field vector. तो हमने इस एंगल को एक्सटेंड किया इन टर्म्स ऑफ 3 डिफरेंट कैटेगरीज. एक जबकि थीटा हमारा 90 हो, दूसरा जबकि थीटा हमारा 0 हो, और तीसरा थीटा जबकि हमारा 0 और 90 के बीच में हो. एंड व्हाट वी सॉ कि जब थीटा 0 है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है क्योंकि साइन थीटा विल बिकम 0. साइन 0 इज 0, सो देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स. अब अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट इस पे नहीं करता है, दैट मीन्स the trajectory of the particle, or you can say the path of the particle, it's gonna be a straight line, right? This gonna be a straight line. And if the angle is 90, then what we saw, the trajectory is gonna be circular path, right? This will be circular path, and in this there will be magnetic force, and this magnetic force will provide the necessary सेंट्रीपेटल फोर्स, है ना. ये ध्यान में रखना है, ये तीनों चीज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब जब एंगल 90 और 0 के बीच में हो, मतलब कोई जनरल एंगल हो, तो उसको क्या किया हमने, उसको प्रोजेक्ट किया v cos थीटा और v sin थीटा कंपोनेंट्स में. एंड वी सॉ दैट one component was providing straight line trajectory, another component was responsible for circular path. तो इसलिए इसका पाथ क्या हो जा रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर प्लस स्ट्रेट लाइन. ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, बट दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इसके कॉम्बिनेशन से जो हमारा पाथ आता है दैट इज हेलिकल पाथ. सो वी विल रिमेंबर द ट्रेजेक्ट्री एज हेलिकल, और यू कैन से स्प्रिंग लाइक पाथ. राइट, दिस इज क्लियर टू ऑल. ये सारे हमने ऑलरेडी देखे थे. ओके, एंड देन व्हाट वी टॉक कि जब हमारा एंगल 90 डिग्री होता है तो हमने मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट कर दिया सेंट्रीपेटल फोर्स से, बिकॉज वी नो centripetal force, there is no such force called as centripetal force. There has to be some another force which is responsible for centripetal force, है ना. यहाँ पे magnetic force is responsible for the centripetal force, है ना. ये magnetic force ही centripetal force है, और इसमें हमने क्या किया, mv स्क्वायर बाय r इक्वेट किया मैग्नेटिक फोर्स से, तो bqv. और यहाँ से हमने वी गॉट वेरियस एक्सप्रेशंस जो कि हम इजीली निकाल सकते हैं. एक तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो कि मिल गया mv बाय bq, और दूसरा हमने v के जगह यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया r ओमेगा, तो बन गया mr ओमेगा बाय bq इज इक्वल टू r. ये r कैंसिल हुआ, यहाँ से हमें मिला ओमेगा इज bq बाय m. यहाँ से हमें मिला फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड. कैसे, ये बस सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, या फिर ओमेगा इज 2 पाई f, बिकॉज वी नो f इज 1 बाय टी, है ना. ये सारी चीजें हमने कल ही डिस्कस कर लिए थे. सो लेट अस डू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज थिंग्स. एनी डाउट स्टिल हियर? किसी को भी कोई भी डाउट्स हैं, दे ऑल कैन आस्क मी नाउ ओनली, बिकॉज वंस वी स्टार्ट डूइंग प्रॉब्लम देन इट विल बी अ गुड, अ वेरी
पैट कंसर्न। अगर कोई डाउट्स हैं प्लीज आस्क मी नाउ। नो डाउट्स? Okay, so we already did the question based on the normal charge moving in a magnetic field, तो उस पे जो force act करते हैं. Let us do a simple question based on the trajectory. Yes, Aryan Mishra, we will learn about cyclotron now only. और right hand palm rule के जगह Fleming's right hand rule, Fleming's left hand rule होता है, right? Fleming's right hand rule हम यूज करते हैं to get the direction of induced current, जो कि हम alternating current चैप्टर में पढ़ेंगे. Fleming's left hand rule ये यूज होता है to find the direction of the force. ये you can keep this also in mind कि जो हमारा right hand palm rule देता है, the same thing will give you, the same thing you will get using left hand rule, Fleming's left hand rule. But again, it's your choice. I feel that you particles. Okay. Just one question based on my working in the previous class, so we can quickly do this. Okay. सबको मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? एवरीवन कैन हियर मी प्रॉपर्ली? अच्छा, माइक्रोफोन हो, the mic, it's breaking still. अच्छा, now is it fine? Video off कर, oh, then definitely it would have been server problem because it's raining very heavily in Mumbai now. Okay, if it's fine we can continue. तो ये क्वेश्चन करते हैं जल्दी से. 3 चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूट्रॉन है, एंड अल्फा with the same kinetic energy moves perpendicular to magnetic field. Perpendicular to magnetic field, चलो ये ले लिया, magnetic field अंदर जा रहा है और चार्ज ऐसे आ रहा है. ये बस मैंने एक एग्जांपल लिया. आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड राइट में है और चार्ज ऐसे जा रहा है. So this will be easier for me to apply right hand palm rule here. Okay, anyways, we just need to find the ratio of their radii. So what will be the ratio of the radii? कौन सा इक्वेशन यहाँ पर हम यूज करेंगे? Ratio is 1 is to, okay, 1 is to root 2 is to root 2 1. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है ना, तो काइनेटिक एनर्जी को तो फैक्टर में लेना पड़ेगा, because here we have no information about the velocity. तो अगर हम ध्यान दें तो रेडियाई क्या निकलता था? v इक्वेटेड b क्यू v, ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मतलब थीटा 90 डिग्री है, तो यहीं से हम क्या लिख सकते हैं? b क्यू v इज mv स्क्वायर बाय r. तो ये कट हो गया. वेरी सिंपल, रेडियस क्या मिलता था हमें? mv बाय bq, है ना, mv बाय
बी क्यूब। तो क्या हम ये इक्वेशन लगाएंगे? वी कैन नॉट अप्लाई, क्योंकि वी हैव नॉट गिवन हियर अबाउट वेलोसिटी, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो में v ऑफ प्रोटॉन, v ऑफ ड्यूट्रॉन, v ऑफ अल्फा भी तो रहेगा। बट इफ इट इज गिवन दैट देयर काइनेटिक एनर्जी आर सेम, तो इस इक्वेशन को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख देते हैं। k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मास मास को मल्टीप्लाई किया तो मिला हमें 2km इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और m इंटू वी मिल गया रूट अंडर 2km। तो आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन रेडियस का, क्या मिला? रूट अंडर 2km बाय बी क्यूब, है ना। अब क्या क्या चीज कांस्टेंट है यहाँ पर? दे आर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है बिकॉज इट सेज इट इज मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा जो रेडियस हो गया दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द मास बाय चार्ज, है ना। तो सबके मास रूट ऑफ मास बाय चार्ज निकालेंगे एंड वी विल जस्ट गिव द रिजल्ट। तो पहले का मास अगर m है प्रोटॉन का और चार्ज e है, तो ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 2m, और चार्ज कितना होता है? e, राइट। प्रोटॉन दैट मीन्स 1h1। what is deuteron? These particles you must remember: isotope of hydrogen, protium, deuterium, tritium, है ना। सो ड्यूट्रॉन देखोगे तो वो होगा 1h2, मतलब उसके चार्जेस भी क्या होते हैं? सेम, e, बट मास इज 2m। on the other hand, alpha particle, this mass is 4m and charge is 2e. Okay, so you can just find the ratio now. तो यहां पर आ गया रूट ऑफ m by e is to root of 2m by e is to root of 4m by 2e। ये बन गया 1 is to root 2 is to, ये आया यहाँ पर बाहर 2 और ये बन गया 1। सो यस, द वन हु गेव मी दिस आंसर 1 is to root 2 is to 1, that is exactly correct. Okay, राइट मोहम्मद। ये समझ में आया? या तो ऐसे कर सकते हो, एक्सप्रेशन ही चेंज कर दो, या फिर काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब कि एम वी स्क्वायर सेम है सबके, तो सबके वेलोसिटी निकालने के लिए ये इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, ये भी कर सकते हो और इसको यहाँ पर पुट कर सकते हो। क्लियर है? ये होगा, क्लियर ही होगा। दिस इज वेरी सिंपल। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so let us say that we have a charge
a charge of magnitude 2 microcoulomb moves at an angle of 60 degree with respect to the magnetic field. So you have to find the pitch. You have to find the pitch if the particle has or particle moves, if particle moves with velocity or with the speed of 10 meters per second, provided that the magnetic field in the region is 2 into 10 to power minus 4 Tesla. Yes, whatever has not been given, we will take that as 10 to power minus 6, है ना। जैसे मास अगर नहीं है तो मास हम ले लेंगे 10 टू पावर माइनस 6 kg। रेडियस भी चाहिए और नॉट। इफ यू रिक्वायर रेडियस, स्पीड 10 है क्या? यस, स्पीड इज 10। We don't need radius here. That's the information we require. सर स्पीड कितना दिया हुआ है? 10 meters per second. Seven 7.85 into 10 to power 4, and what will be the unit? Meters, because pitch क्या है? Horizontal distance. So quickly let me just check it. तो पहले तो हम क्या करेंगे? So v cos theta मतलब cos 60 into this pitch is equal to
जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, पिच क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, ये हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज v cos 60 टाइम्स द टाइम पीरियड, क्योंकि जो पिच होगा वो एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ जब ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा तभी होगा उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एंड टाइम पीरियड वी नो क्या होता है, mv²/r is equal to bqv। every time just have the habit of finding it out because this is very simple। v क्या था, r ओमेगा, ये कट गया, बचा ओमेगा इज by bq by m। yes, so 2 pi m by bq ये होता है टाइम पीरियड, इसको यहाँ पर रखेंगे। so we'll get overall v cos 60 is 1/2 2 pi times m by bq। so if we just find the value, so 5 into 2 into 3.14 times the mass, that is 10 to power minus 6 by the magnetic field and the charge is 2 microcoulomb। so 3.1 times 2.5 if we do, $7.75। okay, 7.75 times 10 to power 4 meters। थोड़ा illogical है ये आंसर, but yes, according to the question, according to the data, this answer is correct because definitely this is not right to get this much horizontal distance, है ना। एक छोटे से पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इतने स्प्रेड ओवर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, राइट। बट यस, अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन टू अस, this is clear, this is exactly right। okay, moving ahead to the next thing, now we will talk about the time spent by the particle in the magnetic field region। टाइम स्पेंट मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है, राइट, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं अगर 90 डिग्रीज पे एक पार्टिकल को फेंकूं, लेट अस सपोज यहाँ पे पार्टिकल है और इस पे मैंने 90 डिग्री पे कोई वेलोसिटी लगा दिया, कोई फोर्स लगा दिया, तो डेफिनेटली दिस पार्टिकल विल कंप्लीट द सर्कुलर पाथ, है ना। क्यों सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, बिकॉज at every point there is magnetic field and the force will be towards the center। अब इसी के अपार्ट एक दूसरा सिचुएशन देखते हैं कि मैंने लेट अस सपोज यहां से मैग्नेटिक फील्ड शुरू होता है और मैंने यहां पर पार्टिकल को थ्रो किया, तो ये जो पार्टिकल कवर करेगा इसका पाथ क्या होगा, सेमी सर्कुलर, राइट, या फिर हम कर्व्ड कर सकते हैं। ओवरऑल द पाथ विल बी कर्व्ड। कौन सा कर्व, सेमी सर्कुलर, राइट। अच्छा, सेमी सर्कुलर कब हुआ, जबकि हमने इसको 90 डिग्री तो हमेशा है, मैं चाहे चार्ज को ऐसे फेंकूं या चार्ज को ऐसे फेंकूं, हमेशा वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। बट अब हम क्या कर रहे हैं, इस एंगल को भी ध्यान रख रहे हैं। आई एम टेकिंग इनटू कंसीडरेशन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में एंगल क्या है, जीरो। तो अब अगर एंगल जीरो है तो ये पाथ क्या क्या करेगा, कर्व, सेमी सर्कुलर, राइट, सेमी सर्कुलर। तो सेमी सर्कुलर कब होगा, जब थीटा जीरो है विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये एक रैंडम डायरेक्शन है। अच्छा, मैं और एक और चीज करता हूं इसमें, लेट अस से अब मैं पार्टिकल को इस एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो इस एंगल पे प्रोजेक्ट करने के बाद क्या पार्टिकल का जो कर्वेचर है, दैट कर्वेचर will it be less in the magnetic field or will it be more in the magnetic field? पार्टिकल का कर्वेचर मतलब कि यहाँ पर देखते हैं, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने क्या किया, पार्टिकल को किसी एंगल पे उस पॉइंट पे थ्रो किया जहां से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से पार्टिकल को ऐसे फेंका, तो ऐसे फेंका तो ये देखो ये जल्दी पार्टिकल निकल जाएगा,
मतलब कि इफ दिस वाज द हाफ पार्ट ऑफ सर्कल, यू कैन सी नाउ दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सर्कल। अभी अगर मैं एंगल इंक्रीज कर दिया, लेट अस सपोज मैं ऐसे पार्टिकल को फेंका, तो ये जल्दी निकल जाएगा क्योंकि ओवरऑल पाथ तो कर्व्ड होनी है इसकी, राइट? है ना? एलिप्स नहीं, बस हम याद रखेंगे दिस इज अ कर्व्ड पार्ट, राइट? और जितने भी कैलकुलेशन होता है उसमें हम सर्कुलर लेते हैं, है ना? बिकॉज दिस कर्व्ड पार्ट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। So we will talk about at different angles when the particle is thrown, what is the time spent by the particle in the magnetic field, right? So the topic is not a topic, just a small question that can be based on this: time spent by particle in the magnetic field. तो कोई मुझे बता सकता है इस फर्स्ट केस में जब एंगल जीरो है, जब एंगल जीरो है तो टाइम, व्हाट विल बी द टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल? लेट अस सपोज टी लिया, तो यहाँ पर टी क्या होगा? टी होगा कैपिटल टी बाय 2। वेरी सिंपल। कैपिटल टी क्या था? टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल। टाइम पीरियड इज टोटल टाइम टेकन टू कवर अ कंप्लीट पाथ और टू कंप्लीट अ सर्कल। तो यहाँ पे अगर एंगल जीरो हो रहा है, फर्स्ट केस में अगर थीटा जीरो हो रहा है, तो हमारा पाथ क्या हो रहा है? सेमी सर्कुलर। मतलब कि टाइम क्या होगा? आधा टाइम पीरियड का, टी बाई 2। अच्छा, सो द मेन कंसर्न लाइज इज इन दिस सिचुएशन। हमने क्या किया? वी आर प्रोजेक्टिंग द पार्टिकल एट सम एंगल। यहां से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है। अब हमने एक पार्टिकल को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया। सो लेट अस से आई प्रोजेक्टेड एट स्पीड v एंड दिस इज द एंगल। तो ये पार्टिकल ऐसे निकलेगा, राइट? इसका चलो कर्व ट्रेजेक्ट्री ऐसा है, मतलब इसका सेंटर जो होगा वो कुछ यहाँ पर होगा, है ना? इसका सेंटर कुछ यहाँ पर होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द एंगल। और अगर हमने ये एंगल निकाल लिया तो हमें पता चल जाएगा कि टाइम कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जब पार्टिकल 2 पाई एंगल कवर करता है तो उसमें टाइम कितना लगता है? टी। तो 1 रेडियन अगर कवर करेगा, इफ द एंगल एट द सेंटर विल बी 1 रेडियन, तो ये हो गया टी बाई 2 पाई। और अगर एंगल इस केस में देखो पाई रेडियंस है, तो अगर पाई हुआ तो ये क्या हुआ? टी बाई 2 पाई इंटू पाई। तो ये देखो ये क्या मिला? टी बाई 2, एंड दैट इज व्हाट वी गॉट हियर। तो उसी तरह अगर हम किसी जनरल थीटा एंगल की बात करें यहाँ पर, तो थीटा एंगल पे क्या हो गया? टी टाइम्स थीटा बाय 2 पाई। So this will be the time taken if the angle at the center is theta. So to find the time spent by the particle in magnetic field, what must be our motto? To get the angle formed at the center. यहां तक क्लियर है? तब मैं ये एंगल निकालूंगा अभी। यस, अभिराम, वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट सेगमेंट। क्या कौन सा अनदर पॉसिबिलिटी? इन विच थ्योरी? सर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जितना लेंथ चाहिए उतना नहीं है तो? हाँ, वो तो फिर दूसरा केस आ गया। मैग्नेटिक फील्ड इनफ नहीं है तो रीजन पे जैसे ही पार्टिकल पहुंचा वहां पे फोर्स लगना ही बंद हो गया। तो अभी जो हम कर रहे हैं, अभी जो हम कंसीडर कर रहे हैं सिचुएशन, उसमें है कि पूरे जगह मैग्नेटिक फील्ड है और पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड रीजन में फेंका और वो उसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में पाथ ट्रेस किया। ये देखो इस पॉइंट से क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया। तो ये पार्टिकल को हमने देखो ऐसे फेंका ना, ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकल को कर्व करके लाके फेंका, ये स्ट्रेट में फेंका पार्टिकल को, तो पार्टिकल क्या हुआ? कर्व्ड हो गया। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आया, वो फिर से यहाँ से चला गया टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ओके, नाउ
लेट अस फाइंड द एंगल एट द सेंटर। तो ये एंगल थीटा एंगल पे मैंने प्रोजेक्ट किया, तो निकलेगा कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे ही ये निकलेगा। मतलब कि इस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में ये एंगल हमारा जो होना चाहिए वो होगा थीटा। अच्छा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है बिकॉज वी नो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। ये 90 डिग्री माइनस थीटा एक बार मिल गया तो यहां से चलो एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं इसके रेस्पेक्ट में, और ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस हाफ एंगल, है ना। तो ये भी हो गया 90 माइनस थीटा। अब अकॉर्डिंग टू सिमेट्री इधर भी क्या होगा, देखो सेम टाइप से जैसे हमने इधर एंगल निकाला वैसे भी ये थीटा है, ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो एंगल हो गया एट द सेंटर दैट इज 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा, दैट इज 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, एंड दैट इज 5 माइनस 2 थीटा। तो कितना टाइम स्पेंट होगा यहाँ पर? टाइम स्पेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी t by 2 पाई इंटू थीटा, और थीटा क्या है? 5 माइनस 2 थीटा। दिस इज क्लियर, है ना, ये क्लियर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल ऑलवेज बी विथ रेस्पेक्ट टू, चलो हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में इतने एंगल पे फेंक दिया, बट ये बस एक केस है। नाउ व्हाट वी हैव सीन, आई हैव जस्ट अप्लाइड नॉर्मल मैथमेटिकल ज्योमेट्री और मैंने टाइम निकाल लिया। कैसे? सेगमेंट के बेसिस पे। ओके, एवरीवन कैन नोट दिस डाउन। So we have a simple question here based on this same thing. What is the case of pi minus, case for pi minus 2 theta? ये केस है जबकि हमने किसी एंगल पे यहाँ पर फेंका, that angle is not zero and it is over this horizontal axis. Now whatever question I'll give you that will be based on कि मैंने चार्ज को इधर फेंका। तो ऑफ कोर्स अगर इधर फेंका तो वो जो होगा कुछ ऐसा पार्ट कवर करेगा, मतलब कि this will include maximum portion of the circle. So you have to find the time taken in this path. So पहले ये अगर नोट हो गया, now number 3 you have to do this question. ये केस ही है थर्ड केस, बट यू हैव टू डू इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर क्या किया, फिर से रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, so the cross shows that the magnetic field goes into the plane. अब कैसे यहाँ पर फेंक रहा हूं मैं पार्टिकल को इधर, with respect to horizontal you can see I am projecting the particle at an angle below the horizontal axis. So let us suppose मैं इस थीटा एंगल पे यहाँ पे थ्रो किया, तो डेफिनेटली उसका पाथ क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, राइट, ताकि ये सर्कल का थोड़ा सा पार्ट बाहर रहे। ये थोड़ा गुब्बारा लग रहा है, सर्कुलर कम लग रहा है, मेक इट मोर क्लियर। तो कोई बात नहीं, इसको यू कैन कंसिडर दिस एज सर्कल।
इंडिकेटिंग कि यहाँ पर जो पार्ट होंगे वो छोटा पार्ट होगा, ओके यस। मैंने पार्टिकल को कैसे प्रोजेक्ट किया, एट एन एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट किया है ना, टेंजेंशियल प्रोजेक्ट किया मैं। तो टेंजेंशियल प्रोजेक्ट करने से ये सर्कुलर पाथ होगा, क्योंकि एट एवरी पॉइंट द एंगल इज 90 डिग्री, तो पाथ तो सर्कुलर ही होगा। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द टाइम स्पेंट in the region of, I am talking about in the region of magnetic field। तो क्वेश्चन है in the region of magnetic field, क्योंकि इधर भी तो टाइम स्पेंड हो रहा है पाथ कवर करने में। तो अगर ओवरऑल पाथ की बात करें दैट विल बी डिफरेंट, वी जस्ट वांट द टाइम फॉर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर। तो यू हैव द ऑप्शन, एक तो है पाई एम बाई बी क्यू ले लेते हैं, पाई एम बाय 2 BQ। एक और ऑप्शन ले लेते हैं 3 पाई एम बाय 2 BQ, और दूसरा ऑप्शन हमने ले लिया 2 पाई एम बाय 3 BQ। और ये जो एंगल है वो एंगल को चलो मैं फिक्स कर देता हूँ, लेट्स टेक दिस एंगल एट 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री नीचे की तरफ मैंने फेंका। देन व्हाट विल बी द टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सी, वन ऑफ यू हैज सेड सी, चलो बाकियों का देखते हैं। बस नॉर्मल सिंपल मैथमेटिकल ज्योमेट्री यहाँ पर लगाना है, ऐसा भी नहीं है कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री हम यूज कर रहे हैं। एवरीवन विल डू, सबको सी मिल रहा है। So some of you should ask me some question in this. आंसर तो निकलेगा ही, बट इस केस में देर इज अ सिंपल फ्लॉ इन दिस केस, जो कि हमें एनालाइज करने के लिए आना चाहिए। ओके, वी विल सी द आंसर लेटर ऑन, बट पहले एक और क्वेश्चन है मेरे पास। My statement may be wrong. You all have to think and tell me whether I am wrong or what should be the correct one. मैंने क्या किया, पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट किया, राइट? तो ऐसा क्यों जरूरी है कि पार्टिकल ऐसे ही कब होगा? क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता है? ये हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता है पार्टिकल ऐसे कवर कर ले? Tell me which amongst this loop is possible for the particle to traverse? कितने लोग मानते हैं कि ये पाथ भी पॉसिबल है?
लूप 2 होगा इफ चार्ज इज पॉजिटिव, एग्जैक्टली। क्योंकि हमने क्या करना है, ये पाथ कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, वी डिटरमाइन द पाथ बेस्ड ऑन कि उस चार्ज पार्टिकल पे उस पॉइंट पे फोर्स किधर लगा है ना, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल ले लो या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले लो या फिर वेक्टर प्रोडक्ट रूल ले लो, राइट हैंड थंब रूल। तो इस पॉइंट पे फोर्स किधर होगा, इधर इधर। तो अगर यस चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन होने चाहिए, अगर मेंशन नहीं है तो वी विल अज्यूम बाय डिफॉल्ट चार्ज इज पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव केस है देन दैट विल बी गिवन टू द गिवन इन द क्वेश्चन, और वो ये वाला पाथ होगा। तो चलो वी आर श्योर दैट पाथ विल बी द वन विच वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन। अब इस पे टाइम कितना होगा, पाई एम बाय कुछ ये आ रहा है, एवरीवन विल ट्राई आउट, बी मिल रहा है या सी मिल रहा है। देखो यू हैव टू जस्ट फाइंड द एंगल एट दिस सेंटर, तो इस सेंटर पे एंगल निकालना है। तो चलो ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री है बिकॉज दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज रेडियस, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। उसी तरह यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गए, ये ट्रांसवर्सल हो गए, तो ये क्या हो गए 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो गए 90 माइनस थीटा। तो ओवरऑल एंगल सेंटर पे कितना ट्रेवर्स हुआ 2 इंटू 90 माइनस थीटा। बट ये एंगल नहीं होगा क्योंकि ये एंगल तो हमने इधर वाले एंगल निकाला, हमने कौन सा एंगल लेना है, ये वाला एंगल लेना है, राइट। बिकॉज दिस ड्यू टू दिस एंगल you can see the path covered by the particle is lying majority on the circle। तो जो एंगल होगा हमारा जो ये हमने निकाला, so that will be subtracted from 2 pi minus 180 डिग्री प्लस 2 थीटा, तो आंसर होगा पाई प्लस 2 थीटा, राइट। ये होगा एंगल एट द सेंटर। ये एंगल समझ में आया सभी को, है ना। अब एंगल कितना है 45, तो पाई प्लस 2 इंटू 45, सो दैट विल बी पाई प्लस पाई बाई 2, सो दैट इज 3 पाई बाई 2, मतलब कि 270 डिग्री। तो 270 डिग्री पे क्या होगा, टाइम कितना होगा 3 बाई 2 टाइम्स, राइट। 3 बाई 2 टाइम्स होंगे, दैट इज करेक्ट। सो फॉर द फर्स्ट केस व्हेन द चार्ज इज पॉजिटिव, ये होगा 3 पाई एम बाई 2 बी क्यू, ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। बी कब आएगा आंसर हमारा, जबकि चार्ज नेगेटिव है, क्योंकि चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो हमने एंगल कौन से लेने हैं, ये एंगल लेना है, क्योंकि वो चार्ज अब नीचे की तरफ सर्कुलर पाथ। एवरीवन दे आर क्लियर विद दिस। लेट्स चेक दिस ऑप्शन। एक तो 2 पाई टाइम पे 2 पाई एंगल पे टाइम टी हुआ, 1 रेडियन पे टाइम होगा टी बाई 2 पाई, और हमारा क्या एंगल मिला 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 पे मिलेगा टी बाई 2 पाई इंटू 3 पाई बाई 2, तो ये मिलेगा हमें यस 3 टी बाई 4। दिस शुड बी 3 बाई 4, ओके, है ना। ये समझ में आया 3 टी बाई 4 कैसे होगा। 3/2 ही करेक्ट है, वो बाद में फॉर्मूला में डालेंगे तो वो 2 कट हो जाता है। 2 कट हो जाएगा, दैट मीन्स 3 बाई 4 ऑफ टी,
right? 3/4 of t, I mean. So overall we will get this only 3/4 t. t के जगह हम expression use करेंगे. Okay. So we have one more question. क्या किया मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में हमने एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया, पॉजिटिव चार्ज को v वेलोसिटी से. तो ये चार्ज क्या होगा, जरूरी नहीं है अब कि ये कर्व्ड पाथ कर ही ले, बिकॉज नाउ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन इज लिमिटेड. कहां तक है, बस d डिस्टेंस तक है. तो डेफिनेटली जब इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पर पार्टिकल जैसे ही यहाँ पर आएगा वो सीधा चला जाएगा, है ना, बिकॉज देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग away from or out of this point. So we have to find now the angle theta, that means the angle of emergence. इस केसेस में क्या हो सकते हैं क्वेश्चन, you have to determine the angle of emergence and you have to find the time spent. If पहला क्वेश्चन, पहला कंडीशन when d is equal to this one, second when d is equal to this, third when d is equal to this. मतलब just take d into consideration and find out the angle of emergence of the positively charged and the time spent by the particle in the region of magnetic field. कैसे होगा ये, जल्दी करेंगे. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. pi by 6 and pi by 2 एंड नंबर 3 भी निकाल लो अभी. लेट मी नो नंबर 3 क्या मिल रहा है. एक एक केस लेके कर सकते हो, रेडियस ऑफ द सर्कल को एनालाइज कर सकते हो. मैं ये भी एक्सप्रेशन देता हूँ, रेडियस का क्या था, एम वी बाय बी क्यू. दिस इज क्लियर कि यहाँ पर मैं कैसे फेंक रहा हूँ इसको परपेंडिकुलर, मतलब कि ये जो पाथ होना चाहिए ये सर्कुलर होना चाहिए, सेमी सर्कुलर इनफैक्ट होना चाहिए अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता तो. बट सेमी सर्कुलर नहीं हो पा रहा है, मतलब दिस इज लाइन, दिस इज अ पार्ट ऑन द सर्कल इटसेल्फ जिसका की रेडियस आर है, राइट. रेडियस, ये जिस सर्कल का पार्ट है ये कब, उसका रेडियस आर है, इतना हम श्योर हैं. सो यू कैन सी इन दिस केस, लेट सपोज मैं पहला केस ले लिया जबकि d इज इक्वल टू एम वी बाय 2bq. इस केस में v किधर है, इधर राइट डायरेक्शन में मैंने प्रोजेक्ट किया और वो कुछ कर्व्ड गया और यहां से वो
स्ट्रेट चला गया। दैट मीन्स जो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड रीजन दैट इज कंस्ट्रेंट विद इन दिस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। लेट अस टेक एंगल्स इनटू कंसिडरेशन। ये जो है इसका कोई सेंटर होगा, है ना, किसी भी पॉइंट से हम देखें तो एक सेंटर होगा, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री इनफैक्ट। अब ये आर है, ये एंगल हमने थीटा लिया है, तो ये एंगल थीटा लिया है हमने, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज दिस रेडियस एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। ये 90 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। एंड वंस वी गेट दिस एज थीटा, अब देखो ये हमारे पास डी दिया हुआ था, सो दिस in this triangle you can see this side you know that is d, this you know that is r मतलब ये है, you are given in terms of this mv and bq the options। तो यहां से हम sin थीटा क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर दैट इज d by hypotenuse दैट इज r। अब r की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और d के जगह ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो d by r अगर निकालें तो पहले केस में d by r क्या निकलेगा, mv by 2bq डिवाइडेड बाय mv by bq। तो ये सारे चीज कट हो जाएंगे, मिलेंगे 1/2। तो एंगल कितना मिला हमें, π/6, 30 डिग्री। और अगर एंगल 30 डिग्री मिल गया तो हमें टाइम इजीली निकल सकता है, टाइम स्पेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड। और वो टाइम स्पेंट क्या होगा, t/2π इंटू थीटा। थीटा कैसे, कौन से थीटा की बात करते थे हम, 2π माइनस 2 थीटा, यही जी था सर, ना, पाई माइनस 2 थीटा। पाई माइनस 2 थीटा। No need to remember, you can derive that whenever it is required। Yes, we got that as pi minus 2 theta। So let us use this। So if we use this, we will easily get the value of the time spent in that region। Okay, next one, number 2 केस में क्या कर सकते हैं, फिर से वही चीज। So we'll not need to do this again, फिर से sin theta d by r कर देंगे। एंड इस टाइम d क्या होगा हमारा, mv by bq। So mv by bq डिवाइडेड बाय r तो हमारा सेम रहने वाला है, mv by bq। ये हो गया 1, मतलब कि थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री, राइट। साइन थीटा 1 हो गया, मतलब थीटा 90 डिग्री हो गया। सो फॉर केस 2 वी हैव एंगल 90 डिग्री। केस 3 के लिए देखो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2mv बाय bq डिवाइडेड बाय mv बाय bq। तो साइन थीटा क्या मिल रहा है, 2, दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। So whenever particle will be thrown, if d is equal to this one, it's not possible for the particle to cover circular trajectory, सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करके वापस आ जाएगा। सो हाउ वी आर श्योर दैट पार्टिकल विल कम बैक, थर्ड केस में, जबकि हमारा वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब कि वी कैनॉट डिटरमाइन द एंगल विथ रेस्पेक्ट टू दैट कंडीशन। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द पार्टिकल, we can just we can say just to cover the complete circular trajectory। Okay, this is clear to everyone। We still have many questions to go through, and also we studied about Lorentz force yesterday, which included the total force acting on a charge in the magnetic and the electric field। So we'll do questions based on Lorentz force,
the more questions on helical path, and we will talk about cyclotron frequency and the principle of cyclotron. What is cyclotron? Why we need to discuss that all in the next class. But before the next class, you are all required to complete any pending works if you have. If you have completed, well and good. कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है? Okay, no question. So we will meet in the next class, and I will upload these class notes on Google Classroom, and I will also give you some homework. So I'll specify that at the end of this document only. अगर कुछ homework होगा तो, अगर नहीं रहा तो just revise, because after a class or two we will definitely go through the modular discussions and the homeworks. And till then, just finish up your and revise well. Also focus on understanding the concept, because remembering formula, that's not what we require, especially in magnetism, because here there are a number of conditions, a number of formulas. So you need to have the idea about deriving them. Okay, let's meet in the next class. Bye everyone. Bye, sir. Okay, bye bye.